Hello friends, my name is Sonukaur. Welcome to my self-sessions. Today I am going to speak on faith over fear. Faith is a strong belief, a firm persuasion, a firm conviction and assurance that there is some superpower above all us. And in the toughest of times, that power keeps on working on us. जब भी हमें लगता है कि जिंदगी में हम सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ियों में हैं, उस वक्त भी वो पावर, वो सुपरनैचुरल पावर हमें प्रिपेयर कर रही होती है टू फेस द अनसर्टेनिटीज. सो वी मस्ट नेवर लूज आवर होप्स. वी मस्ट कीप आवर फेथ मच बिगर एंड हायर देन आवर फियर्स. फियर, डर, भय, कोई भी नाम दीजिए, इसका कोई वजूद नहीं होता. ये मन के भाव हैं कि हम इतना दहशत को बढ़ावा दे देते हैं दैट वी स्टार्टेड फीलिंग सप्रेस्ड. और उस सप्रेशन में हम उस शक्ति को अनदेखा कर देते हैं जो 24 घंटे हमारे साथ है. यू नो दैट इनर कॉन्फिडेंस, दैट जिसे हम कहते हैं मन की आवाज, अंदर की आवाज, उसको भी इग्नोर करते हैं. मत कीजिए. दिस इज नॉट द टाइम टू कीप सच fearful emotions inside you. This is the time to keep your faith unbeatable. We all are going through testing in tough times. The whole world is suffering because of COVID. I'm here to share my experience with COVID. In the month of April, my both parents were tested positive. Because they were asymptomatic, so they were in home isolation in the due care and supervision of doctors. And as the notion says, one is not supposed to go near them, but how could I leave my parents when they needed me most? So I decided not to. I was there with them all the time during their home isolation, and they were recovering well. You know, सबसे ज़्यादा बीमार इंसान को बीमार क्या करता है? That feeling that he or she is being ignored, that they are no more required. ये वक्त इस बीमारी में उनके साथ रहने का है. You know, the recovery becomes much easier when we give them the love and the caress. दुनिया की हर चीज से लड़ा जा सकता है अगर आपके अपने आप के साथ हो. Believe me, love, prayers, empathy can create magic. I was trying my best to be there with my parents all the time, trying to take care of them in the best possible way. Unfortunately, on the 14th day of the home isolation, my father had his first cardiac arrest at home and I had to shift him to hospital immediately. On the same very day, my mother's oxygen level suddenly dropped and I had to shift her too to the hospital. Unfortunately, my father could not survive because of the second cardiac arrest at hospital and I lost my life that day. I lost my inspiration, my role model. I was shattered into pieces and for fractions of seconds I thought nothing is going to be well now. But there was something which kept me going in that toughest of time, and that was my urge, my need to save my mother. I lost one parent and the other one was struggling too for life. How could I be surrendered? How could I be defeated? I had to gather all my strength one more time for the sake of the life of my mother. I prayed hard to God that give me all the strength to support my mother and to save my mother. It was not easy. Believe me, it was the toughest time one could ever had. On one hand, I was performing the last rites of my father, and on the other hand, I was standing intact next to my mother, saying her, telling her, assuring her कि mama, सब कुछ ठीक हो जाएगा. My mother had to be in hospital for full 1 month. She's still in hospital, but now she's out of danger and recovering well. You know,
इस सब टफ और टेस्टिंग टाइम में जो सबसे ज्यादा तकलीफदायक था वो था लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव थे और क्योंकि मैं उनके साथ थी, तो सडनली आई बिकम अनटचेबल फॉर पीपल। दे नेवर वांटेड टू कम नियर मी। कोई नहीं आया मेरे पास ये सोचकर कि मुझ में भी वो इन्फेक्शंस होगी। पर मैं एक क्वेश्चन है आप सबसे कि व्हेन वी डू नॉट नो द सोर्स ऑफ दैट इन्फेक्शन, दैट वायरस, हाउ कुड बी सो श्योर कि किसी के पास होने से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं और अलग रहने से आप नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड यू नो व्हाट केप्ट मी गोइंग अहेड वाज माय अनबीटेबल फेथ कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, क्योंकि मुझे उन्हें ठीक करना है। आई कुड नॉट सेव माय फादर, प्रॉब्ली इट वाज डेस्टिन्ड दैट वे, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट डे एंड नाइट टू सेव माय मदर। और यही हम सब लोग कर रहे हैं, खुद के लिए, अपनों के लिए, जो सफर कर रहे हैं। और इस सब में कुछ लोग हैं जो अपने सैडिस्टिक प्लेजर के लिए जजमेंटल हो रहे हैं। यू नो, दीज आर दोज पीपल हु आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ना ही कुछ करना चाहते हैं। सो बेस्ट थिंग दे आर एट गिविंग एडवाइसेस। आई वॉज ऑल्सो गेटिंग एडवाइस। आप पहले आप हॉस्पिटल ले जाते, आप ऐसा कर लेते, आप उनको इस तरह से केयर करते। इट इज वेरी इजी to just pass the comments and to just pass the judgments. You don't know how people are struggling. You don't know किस तरह से वो अपने बेहतरीन तरीके से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सफरिंग बहुत 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 ज्यादा तकलीफदायक है। और उस सब में आप जो कि किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज उन्हें डिस्टर्ब भी मत कीजिए। डू नॉट क्रिएट दैट मेंटल प्रेशर ऑन देम, जस्ट बी इन योर शेल। और आप सबके लिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आपकी नजर करती हूँ, वो लोग जो कि कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कि हर मोड़ पर रुक रुक कर चलते क्यों हो, हर मोड़ पर रुक रुक कर चलते क्यों हो, इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो। सो प्लीज स्टे एट होम। आप अपने घरों में रहिए, अपने शेल्स में रहिए, अपनी नेगेटिविटी, अपनी हेट्रेड को अपने अंदर रखिए। प्लीज डू नॉट स्प्रेड इट आउट। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ जेनरस रहने का है। This is the time to be kind to one and all. This is the time to be empathetic to one and all. आप अपना compassion, अपना प्यार, अपना caress बांटिए, prayers बांटिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो please stay away. Do not disturb them because you don't know. People are really suffering. These are the toughest and the testing times for each one of us. और वो लोग जो दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के लिए, अपनों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उन सब के लिए मुझे राहत इंदौरी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, मैं आप सबकी नजर करती हूँ। दोज आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर देम। कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जीने की तरकीबें सभी जारी रखो, कि राह के पत्थर से बढ़कर नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर नहीं है मंजिलें, रास्ते बुलाते हैं, आप सफर जारी रखो। तो आप चलते रहिए, आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू विन ओवर इट। जिंदगी फिर से गुलजार होगी, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। वो लोग जो हमसे इस सफर में बिछड़ गए हैं, लेट अस ऑल प्रे फॉर देम टू रेस्ट इन पीस फॉर एवर। और जो लोग अब भी इससे जूझ रहे हैं, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट अस ऑल प्रे फॉर देयर रिकवरी। मे दे ऑल बी रिकवर्ड सून। और वो फिर से एक बार सुकून की जिंदगी जी सकें, फिर से एक बार सुकून की सांस ले सकें। एंड आई एम गोइंग टू अपील टू दोज पीपल who have been criticizing me in this toughest of times and who have been showing their rough attitude and behavior towards me, कि कभी हम गुलों की महक बनकर उड़ते हैं, कभी हम गुलों की महक बनकर उड़ते हैं, कभी धुआं बन पर्वतों से उड़ते हैं, कि कैंचियां क्या काटेंगी उड़ान मेरी, कैंचियां क्या काटेंगी उड़ान मेरी, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो मेरे हौसले आप कभी नहीं तोड़ पाएंगे, बिकॉज आई हैव कंप्लीट फेथ इन दैट सुपर पावर जो सबके लिए काम कर रही है। और उससे भी ज्यादा आई हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड माई सेल्फ इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ फेथ, इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। सो लेट्स ऑल प्रे फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमन काइंड। लेट्स ऑल प्रे
for all those people who are suffering. Let's all keep our faith much higher and bigger than our fears. So keep praying and keep your hopes alive. Life is going to be beautiful yet again. Stay tuned to the next session. Stay blessed. Keep praying.